A very good morning, church. Praise the Lord. सभी को जय मसीह. The Word of God says in Psalms chapter 150, verse 6, "Let everything that breathes praise the Lord." Amen. Amen. हम परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद देंगे ना, क्योंकि उसने हम सबको ये मौका दिया ताकि हम इंटरनेट के द्वारा फिर से मिल सके. हम विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप सब आशीषित होंगे. आइए हम let us take a few moments ना to thank the Lord just for what He has done in your life ना. Let us all look to God in prayer this moment. Lord, we just want to thank you for this wonderful day that you have given us, Lord. We just want to thank you for this wonderful opportunity to be able to come before you again, Jesus. Lord, we just want to thank you for the blessings that we can count every day, for these blessings that we can see every day, Jesus, Lord, for the unseen blessings, Jesus, Lord. We just want to thank you for this technology, Lord, that we are able to gather together in this manner, Jesus, Lord, Father God. We praise you for this, Lord. Lord, even though we are not able to gather together in a church building, Jesus, Lord, physically, but we just want to thank you for the promises that you have given us, Jesus, that you will be present whenever 2 or 3 gathers in your name, Jesus, Lord. So we just welcome your presence in our worship today, Jesus, Lord. Bless every individual who is watching this video, Jesus, Lord. Lord, even as they worship in their house, Jesus, Lord, in their homes and rooms, Jesus, wherever, Jesus, fill the rooms, oh God, fill their hearts with your presence, Jesus, Lord. Let them, Lord Jesus, feel your presence, Lord, Father God. Let them feel the anointing, Jesus, Lord, Father God. And Lord, if there is anyone who is watching this video and seeking for your peace and joy, Jesus, I pray and speak peace over the life, Jesus, Lord. And I also pray if there is anyone who is watching this video and who is sick, Jesus, I pronounce blessings and healings over the life, Jesus, Lord. Thank you for this wonderful time, Jesus, Lord. Lord, even as we continue to worship you in this manner, Lord, we just want to surrender all the activities, Lord, the worship, Jesus, the offering, Jesus, the song, oh God, and the sermon that Pastor Arpan will be bringing to us this morning, Jesus, Lord. Father God, we want to surrender everything to your care, Jesus. Thank you for this time, Jesus. We bless your holy name, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Now I would like to give this time to Brother Udipta and Sister for the special number, and Brother Bani and Sister Aroma for the worship, and yes, Pastor Arpan for the preaching. God bless you all. Enjoy the service. प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबको जय मसीह. जय मसीह. मैं उदिप्तो और ये मेरा वाइफ रंजिता. हम लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए गीत गाएंगे. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा. उपकार तेरे बेसुमार कोटि कोटि स्तुति. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा.
उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जय मसीह की। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु साधो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु साधो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। आज फिर से आप सबको सेवकाई में देख के इस सर्विस में फिर से लॉकडाउन की वजह से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी प्रभु ने वीडियो के द्वारा हम सबको आपके पास लाया है ना। और हम अभी परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे एक साथ, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति और भी घनिष्ठ तरीके से आपके वहाँ पे आए ना। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे कि स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर हम सबको सहायता करें ना, ताकि इस कठिन समय पे भी हम सबको परमेश्वर का सामर्थ्य मिले। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम स्तुति आराधना आरंभ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर प्रभु। इस वक्त हम दोनों यहाँ पे हैं परमेश्वर पिता, सिस्टर अरोमा और मैं यहाँ पे हूँ परमेश्वर प्रभु। हम सब बैतल परिवार एक साथ पिता हम स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति और भी घनिष्ठ तरीके से यहाँ पे आए परमेश्वर प्रभु पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद, हालेलुया। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन। यीशु आया है तेरे लिए,
You are worthy, Lord. सारे आदर महिमा की योग्य है परमेश्वर। Thank you, Lord. तेरी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है। ये विनती प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे उच्च और पवित्र नाम में, यीशु क्रिस्त के नाम में हम कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ और भी बनी रहे। और अभी हम ये समय पास्टर अर्पण को हम देते हैं। आप अपने हृदय को पूर्ण तरीके से वचन के लिए तैयार कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में जय मसीह। ऑनलाइन के द्वारा फिर प्रभु का वचन लेके आना मेरे लिए खुशी का बात है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं, प्रभु के अनुग्रह में आप सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आशा ये भी करता हूँ कि आपका पारिवारिक प्रार्थना में आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी परिवारों के लिए जो फास्टिंग बैठ के प्रार्थना करके पूरा विश्व के लिए, विशेष करके कोरोना के जो महामारी है आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं उन सभी विश्वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो बहुत ही विश्वास योग्यता से आप चर्च में दसवांश और भेंटी आप टाइट्स आप दे रहे हैं। ये आपके कारण हम चर्च का रेंट हम पे कर पा रहे हैं, आपके कारण हम दूसरे पास्टर्स लोग को हम सहयोग कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रभु आपको आशीष देगा। और जो भी आप प्रभु के राज्य के लिए देते हैं वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएगा। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समय में ब्रदर दीपांकर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ये जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसको पूरा मिला के असेंबल करके एक यूट्यूब में एक चैनल बना के चर्च का अकाउंट से जो आप और हम ये लाभ उठा पा रहे हैं, इसका कारण भाई दीपांकर भी है, क्योंकि वो रात रात को हमारा वीडियोस को एडिट करते हैं और सब बना के वो यूट्यूब में देते हैं। तो मैं भाई दीपांकर को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज मैं ऐसा व्यक्ति के बारे में बाइबल से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा जो व्यक्ति को परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति भी बाइबल में उसको कहा गया है। अंग्रेजी में मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर का हृदय का व्यक्ति। मुझे पता है शायद आपने गेस कर लिया है वो कौन है। उसका नाम दाऊद है, डेविड। दाऊद को प्रभु ने मेरा हृदय का बेटा मैन आफ्टर माय ओन हार्ट बोल के प्रभु ने बाइबल में ये प्रभु ने उल्लेखन किया है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप 1 शमूएल चैप्टर 13 का 14 आप खोल के आप देख सकते हैं। इस चीज़ का मैं आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ। ये बैकग्राउंड ये है कि जब राजा शॉल ने परमेश्वर का बात नहीं माना, क्योंकि प्रभु ने राजा शॉल को एक राजा बनाया था, पर जब शॉल का घमंड बढ़ गया, जब शॉल का अपने आप में भरोसा बढ़ गया और वो प्रभु से दूर हो गया, तब शॉल ने प्रभु का आज्ञा मानना भी छोड़ दिया था। और वो समय में परमेश्वर अगमवक्ता सामुएल को लेके शॉल को बताता है कि अभी तेरा राज्य खत्म, अभी मैं एक नया राजा को मैं उठाऊंगा और उसका नाम दाऊद है। मैं आपको मैं पढ़ना चाहूँगा 1 शमूएल चैप्टर 13 वर्स 14। मैं इंग्लिश बाइबल में ये पढ़ रहा हूँ। बट नाउ योर किंगडम शैल नॉट कंटिन्यू, द लॉर्ड हैज सॉट फॉर हिमसेल्फ अ मैन आफ्टर हिज ओन हार्ट, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. यहाँ पे अगमवक्ता के द्वारा परमेश्वर शॉल को बताएगी, क्योंकि तूने मेरा बात को नहीं सुना, मैं तुझे हटाऊंगा और मैं एक नया मेरा एक बेटा को मैं लीडरशिप में लाऊंगा। और वो कौन है? वो राजा दाऊद है। प्रियो, ये सेम पोर्शन हमें नया नियम में भी मिलता है। अगर आप एक्ट्स 13 का 22 में आप देखते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 22 प्रेरित 13 का 22 में, तब जब पौल जो है
जब वो एंटियोक का मंडली के बीच में वो जाता है, तब वो यही चीज का वो जिक्र करता है। आप सोचिए, जब प्रभु आप पर मुझे कहता है कि तू मेरा हृदय का बेटा है, यू आर द मैन आफ्टर माई ओन हार्ट, और यू आर द वुमन आफ्टर माई ओन हार्ट, तू मेरा हृदय का बेटी, तू मेरा हृदय का बेटा, अगर प्रभु बोलता है तो आप पर मुझे कितना खुशी होता है प्रियो। चर्च, आज आप देखिए, मैं आज आपको एक दो चीज में बताना चाहूंगा राजा दाऊद का जीवन से, जो हम लोग बाइबल में देखेंगे कि क्यों प्रभु ने उसको मेरा हृदय का बेटा या बाइबल में बोला है। द फर्स्ट पॉइंट है दैट आई वांट टू हाईलाइट, प्रथम पॉइंट ये है कि डेविड वाज अ वर्शिपर। आमीन। राजा दाऊद आराधना करने वाला व्यक्ति था प्रियो। मैं भाई दोबे के साथ में आज मैं बात कर रहा था और मैं उसको पूछ रहा था कि एक वर्शिपर का एक क्वालिटी क्या होना चाहिए, तुमको क्या लगता है? तो वो मुझे बता रहा था कि एक आराधक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी एक धन्यवादी हृदय है। सचमुच में प्रियो, जब तक आप और मेरा धन्यवाद का हृदय नहीं है, हम प्रभु को कभी भी आराधना नहीं कर सकते। Until and unless we don't have a heart of thanksgiving, we can never worship God. और राजा दाऊद वो एक परफेक्ट आदमी नहीं था प्रियो, उसका बहुत कमजोरी था, उसने बहुत बड़े बड़े पाप किया, बाइबल में लिखा गया उसने व्यभिचार किया, उसने हत्या किया, पर भी राजा दाऊद का हृदय एक धन्यवादी हृदय था प्रियो। मैं आपको मैं भजन संगीता में पढ़ना चाहूंगा, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 100 वर्स 4। भजन संगीता 104 में आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, एंटर इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड इनटू हिज कोर्ट्स विद प्रेज एंड बी थैंकफुल टू हिम एंड ब्लेस हिज नेम, फॉर द लॉर्ड इज गुड and his mercy is everlasting and his truth endures to all generations. यहाँ पे लिखा गया है, राजा दाऊद बोलता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, जब परमेश्वर के भवन में जाते हो, तो कैसे जाओ? एक धन्यवादी हृदय के साथ जाओ। आमीन। मुझे पता नहीं आप आज कैसा परिस्थिति में, आई डोंट नो व्हाट सर्कमस्टेंसेस आर यू गोइंग थ्रू, पर मैं आपको यही इंकरेज करना चाहूंगा कि प्रत्येक परिस्थिति में धन्यवाद के साथ आप प्रार्थना में जाइए प्रियो। फिलिपी में भी यही लिखा गया है, हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दो। और एक सच्चा आराधक का एक साइन क्या है? उसका एक धन्यवादी हृदय है। आमीन। मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, राजा दाऊद ने बोला है कि प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वो अच्छा है। हर एक परिस्थिति में, शायद आपका स्थिति अच्छा नहीं है, पर वो परिस्थिति में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। और राजा दाऊद हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का उपस्थिति में जाता था प्रियो, वो परमेश्वर को आराधना करता था। आज हम लोग का बाइबल में साम्स, ज्यादातर साम्स भजन दाऊद राजा ने लिखा है प्रियो। और कब लिखा? जब वो परमेश्वर के साथ अकेले में था। खुशी के समय में राजा दाऊद प्रभु का उपस्थिति में जाके आराधना करता था, दुख का समय में वो परमेश्वर का उपस्थिति में जाके वो आराधना करता था। मैं ये हफ्ता में एक भाई के साथ में बात कर रहा था, वो बहुत ही मुश्किल घड़ी से वो जा रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि खुशी में तो सब लोग आराधना करते हैं, पर सच्चा आराधना वही है जब हमारे जीवन में संकट है, सच्चा आराधना वही है जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ है। और राजा दाऊद ने उसको समझा था प्रियो। बाइबल में एक ऐसा घटना भी है जब राजा दाऊद का छोटा बेटा 7 दिन में वो मर जाता है, उसको इतना दुख लगने के समय में भी राजा दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु का आराधना करता है प्रियो। आज आप और हम, क्या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, या हम अपने परिस्थिति के बारे में खाली सोच रहे हैं, या हम लोग के पास क्या है क्या नहीं है, लॉकडाउन है इसके बारे में खाली सोच रहे हैं, या क्या हम प्रभु के साथ अकेले में जाके बोल रहे हैं, लॉर्ड जो भी परिस्थिति हो आई वॉन्ट टू थैंक यू, प्रभु जो भी परिस्थिति हो आई वॉन्ट टू वर्शिप यू। क्या एटीट्यूड से आज आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं प्रियो? फर्स्ट पॉइंट, बी थैंकफुल एंड वर्शिप गॉड। आमीन। सेकेंड पॉइंट, राजा दाऊद का जीवन में आप देखेंगे, ही नेवर टुक एडवांटेज ऑफ द वीक। राजा दाऊद ने कभी भी उससे जो कमजोर है उन लोगों का उसने कभी भी एडवांटेज नहीं लिया प्रियो। मैं एक इंसिडेंट में आपको मैं पढ़ना चाहूंगा, आपके पास बाइबल है तो 2 सैमुएल में आप निकाल सकते हैं। 2 सैमुएल चैप्टर 23
यहाँ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो लोग लड़ाई करने के लिए जाता है फिलिस्तीन्स के साथ, और लड़ाई के बीच में क्या हो जाता है, राजा दाऊद लोग बहुत थक जाते हैं। अब थकने के बाद वो लोग रेस्ट करते हैं, और उसका बीच में राजा दाऊद को बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। किंग डेविड वॉज वेरी वेरी थर्स्टी। तो वो प्यास लगने के समय में वो अपने आप से बात करता है और वो बोलता है, काश कोई मुझे पानी देता। वो अपने आप से बोलता है, और बाइबल में लिखा गया है 3 जो सिपाही है उसका ये प्रार्थना को वो सुनता है। मैं आपके लिए मैं पढ़ देना चाहता हूँ 15, 16, 17. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." 3 mighty men heard it, and they broke through the camp of the Philistines. They drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and he brought it to David. Nevertheless, David, when he saw the water, he did not drink it, but he poured the water into the ground, and he said, "Far be it from me, O Lord, that I shall do this. Is this not the blood of men who went in jeopardy of their lives?" Therefore he would not drink it. These things were done by the 3 mighty men. जब राजा दाऊद बोलता है, ओ मुझे प्यास लगा है, तब 3 सिपाही अपने लाइफ का रिस्क लेके वो दुश्मन का इलाका से होके जाके कुआं से वो पानी लेके आता है और राजा दाऊद को देता है। और दाऊद बोलता है, क्या है ये? और वो लोग बोलता है, ये पानी है, आपने विश किया, आप राजा है, आपको तो मिलना चाहिए। और जब उसको प्यास लगा है, राजा दाऊद क्या करता है, वो पानी को ऐसे ऊपर में लेके वो क्या करता है, सब पानी को ग्राउंड में वो फेंक देता है। और वो बोलता है, मैं कैसे अकेला मैं पानी पीऊं जबकि मेरा पूरा सिपाही वो लोग प्यासा है। देखिए, वो एक राजा था, वो पी सकता था, उसका एक राइट था, पर भी राजा दाऊद ने कभी भी किसी का भी उसने एडवांटेज नहीं लिया पियो। ये समय में आजकल हम लोग का सोसाइटी में हम लोग बहुत सारे गरीब लोग को हम एडवांटेज लेते हैं प्रियो। हम लोग गरीब लोग के साथ हम लोग अच्छा से व्यवहार नहीं करते। जो अमीर है, जो हम लोग का स्टेटस का आदमी लोग है, हम लोग के साथ खाली हम लोग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं प्रियो, पर हम लोग कभी भी गरीब आदमी लोग के साथ हम लोग रिलेशनशिप नहीं रखते। हम लोग उनको हमेशा अलग तरीका से बात करते हैं प्रियो। पर राजा दाऊद ऐसा नहीं था। राजा दाऊद एक बहुत ही भद्र आदमी था प्रियो। वो कभी भी किसी का भी उसने एडवांटेज नहीं लिया। और यही प्रभु यीशु ने भी हमें सिखाया प्रियो। प्रभु यीशु ने सिखाया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए दे दिया प्रियो। उन्होंने अपना जीवन गरीबों का सेवा किया। उसने कहा, मैं जो अच्छा है मैं उन लोग के लिए नहीं आया, पर मैं जो पापी है, जो बीमारी है, मैं उन लोग के लिए आया बोल के प्रभु यीशु ने कहा प्रियो। और वही राजा दाऊद का जीवन में हमें देखने को मिलता है। अगर आप राजा दाऊद का साम्स को आप अच्छा से पढ़ेंगे तब आपको ये दिखाई देगा कि वो हमेशा गरीब लोग के लिए वो गाना गाता था प्रभु के लिए। और वो बोलता था, प्रभु हमारे गरीब लोग का आप प्रार्थना सुनो। अब देखिए, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं, राजा दाऊद ने कभी भी अपने कमजोर आदमी लोग का कभी भी एडवांटेज नहीं लिया। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा, आप और हम भी गरीब लोग के साथ हम लोग दोस्त बनाए प्रियो। वो लोग का नीड में हम लोग को उनको जरूरत को पूरा करना है। किसी भी फिनेंशियल स्टेटस को देख के आदमी को जज ना करे प्रियो। और ये राजा दाऊद ने अपने जीवन के द्वारा आप और मुझे दिखाया है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, डेविड लव एंड रिस्पेक्टेड गॉड्स पीपल। राजा दाऊद ने परमेश्वर के अभिषेक किए हुए लोगों का हमेशा आदर और प्रेम उसने किया है प्रियो। एक मैं स्टोरी में शॉर्ट में मैं बता के मैं आज का वचन को मैं यही रखना चाहूँगा। 1 शमूएल चैप्टर 26 में आपके बाइबल में आप खोल सकते हैं। अगर आप नोट लिख रहे हैं तो यू कैन नोट इट डाउन। 1 शमूएल चैप्टर 26 वर्स 8 and 9। इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। राजा सॉल जो है वो दाऊद को मारने के लिए वो पूरा अपना आर्मी लेके वो दाऊद का पीछे वो भाग रहा है। और उसका इंटेंशन ये है कि दाऊद इतना पॉपुलर हो गया है,
दाऊद को सब लोग मानने लग गया है, वो खुद राजा हो, उसको नहीं मान के आदमी लोग दाऊद को मान रहे हैं, तो वो बहुत जेलस होके वो राजा दाऊद को मारने के लिए वो जहां जहां जाता है वहां उसको मारने के लिए वो अटेम्प्ट करता है प्रियो। और एक बार क्या होता है, परिस्थिति चेंज हो जाता है और राजा दाऊद को एक मौका मिलता है कि वो राजा शाऊल को मार सके, वो राजा शाऊल को मार सके जो उसका जान का पीछे पड़ा है। डेविड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू किल किंग सॉल हु वाज आफ्टर हिज लाइफ। पर यहाँ पे आप देखिए, मैं 8 और 9 में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा गया है, देन अबीशाई said to David, जो अबीशाई जो है वो डेविड का कमांडर है। He said to David, God has delivered your enemy into your hand this day. Now therefore, please let me strike him at once with a spear right to the earth, and I will have to strike him a second time. I will not have. But David said to Abishai, do not destroy him, for who can stretch out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Wow! ऐसा आदमी को उसने रिवेंज लेने का मौका मिला जो उसका लाइफ का पीछे पड़ा हुआ है, जो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। पर भी राजा दाऊद क्या बोल रहा है? नो, डू नॉट स्ट्राइक योर हैंड अगेंस्ट द लॉर्ड्स अनॉइंटेड। उसको मौका मिलने के बाद भी राजा दाऊद ने उसको नहीं मारा प्रियो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के अभिषेक किए हुए व्यक्ति का उसका मन में उसके लिए आदर था प्रियो। मैं आज आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आर यू प्रेइंग फॉर योर पास्टर्स? आर यू प्रेइंग फॉर योर लीडर्स? क्या आप अपने अगुवाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बाइबल में लिखा गया है, अगर कोई प्रभु यीशु का नाम में घर में आता है और वो आदमी, घर के आदमी उसको 1 गिलास पानी देता है, तब वो आदमी के लिए स्वर्ग में बड़ा रिवॉर्ड है बोल के लिखा गया है प्रियो। प्रभु का आशीष उन लोग के लिए बहुत अधिक है जो परमेश्वर के दास और दासी को प्रेम करता है, जो परमेश्वर के दास और दासी को आदर करता है। आजकल तो जमाना ऐसा आ गया है जब पूरा विश्वासी लोग पास्टर के बारे में बात करता है, अगुआ के बारे में बात करता है, सेल ग्रुप लीडर्स के बारे में बात करता है, संडे स्कूल लीडर्स के बारे में बात करता है, ये फलाना पास्टर ऐसा कर रहा है, दूसरा चर्च का पास्टर के बारे में बात करते हैं। पर प्रभु का टीचिंग क्या है यहाँ पर मेरे लिए? दाऊद राजा से हम लोग क्या सीख सकते हैं प्रियो? कि we have to respect God's leaders. जब आप और हम परमेश्वर के अगुआ का हम आदर करते हैं, तब हम परमेश्वर के आदर कर रहे हैं प्रियो। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप आज के बाद प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना कीजिए। वो लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं प्रियो। वो लोग आपको सेवा देने के लिए, सुसमाचार के खातिर उन लोग ने अपने जीवन को अर्पण किया है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि आप प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु के दासों के लिए आदर से आप आगे बढ़े और प्रभु आपका जीवन में प्रभु बहुत ज्यादा आशीष देगा। आमीन। और मैं यही इनकरेज करना चाहूंगा, अंतिम में सोचिए वो दिन जब प्रभु आप और मुझे बोलेगा, ये मेरा हृदय का बेटा है, ये मेरा हृदय का बेटी है। आइए हम प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आइए आप जहाँ पे भी अपने आप को बंद कर सकते हैं और हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के ये सुंदर वचन आपने हमें बोला प्रभु। सचमुच प्रभु राजा दाऊद का जीवन अगर हम देखते हैं प्रभु, तो वो एक आराधक था प्रभु। ही वॉज अ वर्शिपर, जो आपको एक धन्यवादी हृदय के साथ वो आराधना करता था प्रभु। और राजा दाऊद ऐसा आदमी था जो अपने से कमजोर आदमी लोग का वो एडवांटेज नहीं लेता था प्रभु। और राजा दाऊद प्रभु वो उसका हृदय में प्रभु गरीबों के लिए पिता बहुत ही ज्यादा प्रेम था पिता। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, जो वचन आज आपने पिता हमें बात किया पिता, जो राजा दाऊद के मन में उनके अगुवाओं के लिए जो आदर और सम्मान था पिता, आज हमें भी पिता वैसा व्यक्ति बनाओ पिता। आज हमें भी सच्चा आराधक बनाओ पिता। आज हमें भी गरीबों के लिए प्रेम करने वाला व्यक्ति बनाओ पिता। आज हमें भी अपने अगुवाओं के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाओ पिता। हम आपको धन्यवाद देते पिता। आज पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते पिता। जो भी ये ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा ये वचन देख रहे पिता, उनके जीवन में आपकी आशीष, उनके परिवार में आपके आशीष बना रहे। हम सब विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। थैंक यू।